ایک قابل ذکر فیصلے میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ شوپیاں نے چیک باؤنس کیس میں 2 سال قید کی سزا سنائی ہے اور 70 لاکھ کے چیک کی رقم سے دوگنا جرمانہ عائد کیا ہے۔ جرمانے کی رقم 1 کروڑ 40 لاکھ ہے۔ کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے وکیل عبدالباسط ایڈوکیٹ نے بتایا ہے کہ اپریل 2021 میں ایک شخص شبیر احمد نے عدالت سے رجوع کیا اور اس کے مطابق ایک کیس درج کیا گیا اور ملزم کو طلب کیا گیا، لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا اور آخر کار سی جے ایم نے ملزم منظور احمد کھانڈے کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ ایک جو امید ہوتی ہے وہ جاگ گئی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حساب جو تھا یہ کارڈ بورڈ کا تھا، پیسٹیسائڈ کا تھا، کھاد کا تھا اور کچھ سیب وغیرہ کا، تو اس کے ساتھ 70 لاکھ کا حساب تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی اس کو سمجھانے کی، اس کے گھر گئے، ایسوسیشن لے کے بہت بار ہم نے اس کو سمجھا کہ ہم کچھ معاف بھی کریں گے، آپ تھوڑے کچھ یہ ادائیگی کرو۔ تو اس سے ہم نے 2-4 بار 1 سال 1.5 سال تک ہم ویٹ کرتے رہے۔ لاسٹ میں اس نے چیک دی جو فراڈ نکلی۔ ہم نے پھر سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ایسوسیشن کے ساتھ، تو لاسٹ میں جب ہم 10 بار تھک چکے، ٹوٹ گئے تھے، تو ہم نے رجوع کیا کورٹ کی طرف۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے سوال کیا کہ کورٹ سے آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے، کیا فائدہ ہے؟ لیکن جب ہم نے کل جج صاحب کا یہ ڈیسیژن سنا تو ہم بہت خوش ہوئے، ایک نئی خوشی کی لہر پیدا ہو گئی۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ شوپیان ڈسٹرکٹ پورے تاجروں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک جو ابھی تک جو فراڈ قصہ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باسط صاحب نے اس میں بہت اچھی چہل پہل کی، مطلب اس کا رول زیادہ رہا، اس نے ہمیں وقت پہ گائیڈ کیا، تو ہم شکر گزار ہیں کل کے ڈیسیژن سے۔ کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے وہ ہمارے حق میں اور لوگوں کے بھی حق میں بہت فائدہ مند ہے۔ Accordingly, taking note of all those facts and circumstances, Honorable Court of Chief Judicial Magistrate نے ایک ججمنٹ dated 18th of August 2023 پاس کی، جہاں پہ جو accused ہے he has been sentenced to simple imprisonment of 2 years، اور اس کے علاوہ سر ڈبل دا اماؤنٹ آف چیک، جو چیک اماؤنٹ ہے اس کا ڈبل، دیٹ از سر 70 لاکھ کی چیک تھی، 1.40 کروڑ اس میں ایوارڈ ہوا سر، ڈبل دا اماؤنٹ آف چیک ٹو بی پیڈ ٹوورڈز دا کمپلیننٹ، پلس سر دا ڈیٹ جب انہوں نے ایشو کی تھی چیک، دیٹ از 25th of April 2021، فرام دیٹ ڈیٹ اپ ٹو اٹس ریئلائزیشن ان پریکٹیکل، جب وہ پیسے ان کو مل جاتے ہیں، 15% بینک انٹرسٹ، 15% interest on the same check amount from the date of issuance of check till its realization in practical. آگے بڑھیں گے۔ کنی پورہ شوپیاں کے مقامی لوگوں نے سڑک کو دوبارہ شروع کرنے میں ناکامی پر ضلع انتظامیہ شوپیاں کے خلاف احتجاج کیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ACR شوپیاں نے سڑک پر ناجائز قبضوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے احکامات جاری کیے ہیں، لیکن انفورسمنٹ ایجنسیاں زمین پر ACR آرڈر پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہتی ہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی تاجر کے پیسے کی طاقت ACR آرڈرز کی طاقت سے زیادہ ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شکر گزار ہے کہ آپ یہاں پہ آئے، تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ سر آپ دیکھیں یہاں پر یہ تحصیلدار صاحب نے بھی یہاں پہ ڈیمارکیشن کی ہے، 1 بار نہیں 3 بار آئے ہیں یہاں پہ ان کا ٹیم، تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ نشاندہی بھی کی ہے کہ اس سائڈ میں 4 فٹ ہے، یہاں پہ 4 فٹ ہے۔ مقبوض اہل اسلام جو زمین یہاں پہ ہے ان پہ اس کے ناجائز قبضہ کیا ہے لوگوں نے، تو ابھی یہاں پہ RN بھی آیا تھا کام کرنے کے لیے، لیکن یہ یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری پراپرٹی لینڈ ہے، تاکہ ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ دیکھیں آپ ACR صاحب کا آرڈر بھی ہے، یہ دیکھو تحصیلدار صاحب کا بھی آرڈر ہے، نائب صاحب کا بھی رپورٹ ہے اس میں کہ یہ مقبوض اہل اسلام ناجائز قبضہ کیا ہے اس پہ۔ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے
है, हम बहुत मुश्किलातों में, नाबार्ड प्रोजेक्ट में है ये रोड, तो यहाँ पे आरएन भी आया था, लेकिन हमें ये रोक रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से, एलजी गवर्नर साहब से कि हमारा जो ये मसला है ये हल किया जाए, ताकि जो यहाँ पे आवाम ये मतलब रोक रहे हैं इस पे, ये यहाँ पे हम बहुत सफर कर रहे हैं, हमारा मसला हल कीजिए, हम बहुत मुश्किलातों में, मेहरबानी उनकी। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर एसीआर ने इसको मंजूरी दी है, तहसीलदार ने इसको मार्क किया है, उसके बावजूद यानी कि इंतजामिया खुद यहाँ पे बेबस दिखाई दे रही है, यानी कि कागजात इनके पास मौजूद हैं जो मार्क किए गए हैं, इसके बावजूद भी है यहाँ पे इसको नहीं हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का सही कहना है कि असर रसूख के बिना पर ये काम नहीं हो पा रहा है, जबकि इंतजामिया खुद यहाँ पे ये कह रही है कि यहाँ से हटाया जाए और यहाँ से एक रास्ता निकाला जाएगा। आखिर हम भी जो इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इंतजामिया सारा कुछ कर रही है, आवाम के लिए कर रही है, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है कि इस सड़क को नहीं यहाँ से निकालने दिया जाता है। ARTO शोपियां की हिदायत और अहकामात पर मुसाफिर सोमो खिदमात बटपुरा शोपियां से शादी मर्ग तक टोकरू, पंजरान, डायरू और कलमपुरा के जरिए शुरू की गई है। मकामी लोगों की मुतादिद दरखास्तों के बावजूद तमाम देहात को अब तक किसी भी किस्म की मुसाफिर खिदमात से दूर रखा गया था, लेकिन ये सर्विस शुरू कर दी गई है, जिससे इलाके के आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये सर्विस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है। मकामी लोगों ने ARTO शोपियां जाहिद आजाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। 21 अगस्त को सरहदी गांव साई में POJK के बेघर खानदानों के मुतालबात पर किसान लीडर चौधरी मोहन सिंह की सदारत में आरएसपुरा में होने वाले एहतजाज के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें उन खानदानों से अपील की गई कि अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा हो, ताकि आपका पैगाम हुकूमत तक पहुंचाया जा सके। ये जो मेरा आंदोलन है सोमवार को 21 तारीख ठीक दिन के 12 बजे गांधी पार्क आरएसपुरा में, इसमें मेन मुद्दा जो हमारे लोकल लाठी जो लोग हैं, जो हमारे 65-71 के रिफ्यूजी हैं, वो भी लोकल लाठी, और जहाँ हमारा शेड्यूल कास्ट तबका जितना भी है हमारा आरएसपुरा में, सब डिस्ट्रिक्ट में सारा ही लोकल लाठी है। मैं उनकी आवाज लेके आगे जा रहा हूं, जो गवर्नमेंट ने आज तक उनको हक नहीं दिया जमीन का। ये लोग 75-80 साल से रह रहे हैं, जमीन कास्ट कर रहे हैं। 58 साल से ये रिफ्यूजी आए हैं, 65 से 71 से, वहां से शम सेक्टर से, वो अपनी मालकियत छोड़ के आए हैं। अगर हम 47 वालों को सरकार दे सकती है तो 61-71 वालों को क्यों नहीं। आरएसपुरा में मोटिवेट ग्रुप की जानिब से हफ्ते के रोज सरहदी देहात डेर और कंग में सजरकारी मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में फलदार और सायादार पौधे लगाए गए। मोटिवेट ग्रुप आरएसपुरा के बानी रवि कुमार की सरबराही में इस मुहिम के दौरान मोटिवेट ग्रुप से वाबस्ता अरकान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही, जिन्होंने अपनी समाजी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कब्रिस्तान के लिए रकमतियां की। इसके साथ कब्रिस्तान में 200 के करीब पौधे भी लगाए। इस मुहिम में मकामी नौजवानों ने भी भरपूर ताउन किया। मोटिवेट ग्रुप गांव कंगी डायरी में पहुंचा और आज मोटिवेट ग्रुप प्लांटेशन ड्राइव चला रहा है। हमारे ग्रुप ने पिछले महीने जुलाई में 300 पौधे लगाए थे और आज इसी गांव से हमें कुछ दिन पहले डिमांड आई थी, तो आज हमारा मोटिवेट ग्रुप इस कंगी डायरी में पहुंचा। इधर शमशान घाट और कब्रिस्तान है जहां हम पौधारोपण करेंगे। चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल गांधरबल नुजहत अशफाक ने ओहदेदारों की एक टीम के साथ लार गांधरबल में माहौलियाती पार्क की मुजव्वजा जगह का दौरा किया, ताकि मकामी कम्युनिटी के फायदे के लिए पार्क को तैयार करने के इम्कानात का जायजा लिया जा सके। इस पार्क का मकसद गांधरबल के रिहायशियों के लिए एक पुरसुकून और सरसब्ज और शादाब जगह फराहम करना है और साथ ही सयाहों में माहौलियाती तहफ्फुज और बेदारी को फरोग देना है।
लोकल्स हैं ये हमारे पास आए थे तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि ये बहुत अच्छी साइट है यहाँ, तो आप यहाँ इको पार्क या एनवायरनमेंट पार्क डेवलप करें। इसके लिए हमने काम पे लगे हैं, अभी ये टेक ओवर करना है रेवेन्यू वालों से भी लैंड, क्योंकि इसमें हमें ऑफिशियली मतलब वो ऑर्डर्स इशू हो गए हैं, जो भी है अभी टेक ओवर करना है हमें, तो इसको डेवलप करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट पार्क फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट सेफ गार्ड के लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे। यहाँ एक एनवायरनमेंट पार्क बन रही है जिसमें जिम्नेजियम पार्क बनेगा, चिल्ड्रन पार्क बनेगा। ये बच्चों के लिए एक खसूस एक तोहफा बनेगा, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सिटीज़ में। ये थोड़ा आउट ऑफ सिटी में बनेगा ऊपर, तो इसलिए हमने आज विजिट किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने राजवार हंदवाड़ा से आवाम तक रसाई का प्रोग्राम शुरू किया। लोन ने मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से बातचीत की। इस मौके पर सज्जाद लोन ने कहा कि जिन सियासतदानों ने आर्टिकल 370 के अलावा बाकी चीजों को कमजोर किया, जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका एहतसाब करना होगा। लोन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगा। लोन को हंदवाड़ा राजवाड़ में लोगों ने जबरदस्त इस्तकबाल उनका किया। मर्द और खवातीन की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो हमारा एक पब्लिक आउटरीच का मामला होता है, तो हमने अब डिसाइड किया है कि आज से मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह जो पार्टी के बाकी लीडर हैं या मैं हूं, गांव ब्लॉक जाकर एक शुरुआत हमने यहाँ लक्षणपुरा से। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक लिटिगेंट है, हम पिटिशनर हैं, तो हमारे जो वकील हैं राजीव धवन साहब, उन्होंने बखूबी आइन के दायरे के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का केस रखा, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। फिलहाल इसी के साथ पहली खबर में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल लौटें।